آج کی یہ کہانی قاسم نامی ایک ایسے جن کی ہے جن کے باپ دادا اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے۔ قاسم اپنے پورے خاندان کے ساتھ ایک مسلمان کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ جب اچانک گھر والوں اور گاؤں والوں پر مصیبت آئی تو قاسم نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ مل کر گھر والوں اور گاؤں والوں کی مدد کی۔ ایک نیک جن نے گھر والوں اور گاؤں والوں کی کیسے مدد کی، یہ پوری کہانی کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی ہے۔ راجستھان میں ایک بہت ہی پرانا اور پچھڑا ہوا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بستی مسلمانوں کی تھی۔ تقریباً 40-50 مسلمانوں کے کچے مکانات وہاں پر موجود تھے۔ گلیاں بھی کچی تھی، مکانوں کے در و دیوار بھی کچے تھے۔ انہی تمام گھروں کے درمیان ایک گھر تھا نیاز خان صاحب کا۔ نیاز خان صاحب کا مکان کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے گھر میں 3 کمرے تھے۔ 3 کمروں میں سے 2 کمرے ایسے تھے جہاں نیاز خان صاحب اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ایک کمرے پر ہر وقت تالا بند رہتا تھا۔ دراصل نیاز خان صاحب کے باپ دادا پردادا نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ ہمارے اس پشتینی مکان کے اس کمرے میں قاسم نامی ایک جن اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کمرے میں کوئی بھی آئے گا جائے گا نہیں۔ قاسم جن اور ان کے خاندان کے جنات جو اس کمرے میں رہتے ہیں، ہماری وجہ سے کبھی بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اسی وجہ سے اس کمرے کے دروازے پر ہمیشہ تالا بند رہتا تھا، اور گھر کے تمام لوگوں کو اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ اس کمرے میں کبھی کوئی بھی نہیں آئے گا جائے گا۔ البتہ صبح شام جب پورے گھر کی صاف صفائی ہوتی تھی تو معمول کے مطابق اس کمرے کو بھی روزانہ کھول کر صاف کر دیا جاتا تھا، اور صاف کرنے کے بعد کمرے کے دروازے پر پھر سے ایک بار تالا لگا دیا جاتا تھا۔ باپ دادا کی وصیت کے مطابق ایک اور کام بھی پابندی کے ساتھ اس کمرے میں کیا جاتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہر جمعرات کو مغرب کے وقت اس کمرے میں اگربتی جلائی جاتی تھی، اور ایک خاص قسم کا حلوہ بنا کر اسی کمرے میں لے جا کر اس حلوے پر فاتحہ کیا جاتا تھا، اور پھر حلوہ اسی کمرے میں چھوڑ کر باہر آ کر دروازے پر تالا لگا دیا جاتا تھا۔ نیاز خان صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں ان کی ایک بیوہ بہن جن کا نام سوریا خان تھا، وہ بھی رہا کرتی تھی، اور نیاز خان صاحب نے اس کمرے کی صاف صفائی جمعرات کے دن حلوہ بنانے اور کمرے میں لے جا کر اگربتی جلانے اور فاتحہ کرنے کی پوری ذمہ داری اپنی بیوہ بہن سوریا خان کو دے رکھا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سوریا خان کام کی مصروفیت کی وجہ سے اگر قاسم جن کے کمرے میں جمعرات کو اگربتی جلانا یا حلوہ رکھ کر فاتحہ کرنا بھول جاتی تو اگلا پورا دن جو تھا ان کا پریشانی میں گزرتا تھا۔ یعنی ایک دن اگر یہ کام بھول جاتی تو پورے دن وہ بے چین رہتی تھی، پریشان رہتی تھی، یا تو سر میں درد ہوتا یا تو نیند کا غلبہ ہوتا، یعنی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ جس سے انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا کہ میں نے جمعرات کو اگربتی نہ جلا کر، حلوہ نہ بنا کر، فاتحہ نہ کر بہت بڑی غلطی کی۔ پھر وہ قاسم جن اور اس کے خاندان والوں سے معافی تلافی بھی کیا کرتی تھی تو ساری پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا، بارش شروع ہو گئی، اور بارش ایسی برسی کے بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 1 ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ جو کام پر جانے والے تھے نہ کام پر جا سکتے تھے، جو کھیتی باڑی والے تھے نہ وہ کھیتی باڑی کے لیے جا سکتے تھے۔ تمام لوگ بارش کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں قید ہو چکے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں کے ساتھ ساتھ گلی محلوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، کہیں بھی زمین دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گاؤں جو تھا وہ دوسرے گاؤں سے پوری طرح سے کٹ چکا تھا، آنے جانے کے تمام راستے پانی سے بھر چکے تھے۔ گاؤں والے بڑے پریشان تھے، اگر کھیتوں میں نہیں جائیں گے، اگر کام دھندے پر نہیں جائیں گے، اگر بازار نہیں جائیں گے تو پھر ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا۔ گھر کے اندر موجود کھانے پینے کی چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونے کے قریب تھی، اور انہی دنوں میں جمعرات کا دن بھی آتا ہے۔ سوریا خان کو اس بات کا احساس تک نہ ہو سکا کہ آج جمعرات کا دن ہے۔ وہ قاسم جن کے کمرے میں جا کر
अगरबत्ती जलाना, हलवा बनाना, फातिहा करना भूल जाती हैं। देर रात उन्हें इस बात का एहसास हुआ, आज तो जुमेरात थी, आज मुझे ये सब कुछ करना था, मैं ये करना भूल गई। अब वो समझती हैं कि कल का दिन जब आएगा मेरे लिए बहुत मुश्किल दिन होगा, क्योंकि पहले जब भी जुमेरात को ऐसा करना वो भूल जाती थी, अगले रोज पूरे दिन भर वो परेशान रहती थी। लेकिन सुबह जब हुई तो सुरैया खान ने देखा उन पर कोई परेशानी नहीं थी, कोई नई मुसीबत नहीं थी। यानी पूरा दिन पानी की वजह से जो परेशानी और मुश्किलात में गुजरा, उसके अलावा कोई परेशानी नहीं आई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ ही कमरे में जाकर आवाज देकर कासिम जिन का भी शुक्रिया अदा किया। मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपने बिन माफी मांगे ही मुझे माफ कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर सुरैया खान कमरे से बाहर चली आई। अब उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से याद कर रखा था, अगले जुमेरात को मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक एक दिन वो गिनती रही। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन अब भी बाहर आने जाने के तमाम रास्ते बंद थे। लोग अपने अपने घरों में पूरी तरह से कैद हो चुके थे। न कोई गांव से बाहर जा सकता था, न बाहर वाला कोई गांव में आ सकता था, और न ही उन्हें कहीं से कोई सरकारी मदद हासिल हो रही थी। हर तरफ परेशानी और मुसीबत के पहाड़ टूटे हुए थे। ऐसे में जब धीरे धीरे घर में खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी तो नियाज खान साहब और सुरैया खान ये सोचकर परेशान होने लगे कि हम तो जैसे तैसे भूखे रहकर या पानी पीकर गुजारा कर भी लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? बच्चों की भूख तो हमसे हरगिज न देखी जाएगी। अब वो लोग परेशान थे। इसी आलम में फिर एक बार जुमेरात का दिन आ जाता है। सुरैया खान को ये बात अच्छी तरह से याद थी, आज जुमेरात है, कासिम जिन के कमरे में जाकर मुझे अगरबत्ती भी जलाना है, हलवा भी तैयार करना है, ले जाकर वहां फातिहा भी देना है। लेकिन मैं ये सब करूं तो भला करूं कैसे? घर में ना अगरबत्ती मौजूद है, ना हलवा बनाने का सारा सामान मौजूद है, और अगर मैंने आज भी ये सब ना किया तो कल न जाने हम पर कौन सी नई मुसीबत आन टूटेगी। बहरहाल वक्त गुजर गया, मगरिब का वक्त आया, चला गया, ना अगरबत्ती जलाई गई, ना हलवा बनाया गया, ना फातिहा किया गया। जब तमाम घर वाले रात खाने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो जाते हैं, सुरैया खान यही सोच सोच कर अपने बिस्तर पर लेटी थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात का काफी हिस्सा गुजर जाने के बाद आखिरकार जब सुरैया खान से ना रहा गया, अपने बिस्तर से उठती हैं, वजू करती हैं और उसके बाद आगे बढ़कर कासिम जिन के कमरे के दरवाजे का ताला खोलती हैं, कमरे के अंदर जाती हैं, अंदर से कड़ी लगा लेती हैं, मुसल्ला बिछाती हैं और फिर अल्लाह की इबादत में महव हो जाती हैं। उस कमरे में उस वक्त सुरैया खान के अलावा कोई मौजूद नहीं था। वो रोती जा रही थी, नवाफिल की कसरत करती चली जा रही थी, और उसके बाद जब नमाजों से फारिग हुई, अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर फरियाद करती हैं, ऐ अल्लाह, अगर हमसे कोई गुनाह हो गया तो माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा सत्तार है, बड़ा गफ्फार है। ऐ अल्लाह, तूने ये बारिश की शक्ल में हम पर जो अजाब मुसल्लत कर दिया है, अब इससे हमको निजात अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, कोई तो सूरत होगी हमारे गुनाहों की माफी की। ऐ अल्लाह, हम तो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे वो भला भूख कैसे बर्दाश्त करेंगे। ऐ अल्लाह, कल सुबह इन बच्चों को खिलाने के लिए हमारे घर में कुछ भी मौजूद नहीं है। मौला, गैब से असबाब पैदा फरमा दे। पूरे गांव वाले परेशान हैं, बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब के सब परेशान हैं। हमारा पुरसाने हाल तेरे सिवा कोई नहीं है। ऐ अल्लाह, हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी मदद फरमा। यहां तक कि फजर का वक्त हो गया। सुरैया खान मुसल्ले पर बैठी रब की बारगाह में गिरियोजारी करती चली जा रही थी, रोती जा रही थी, दुआएं करती चली जा रही थी। जब फजर का वक्त हो गया, खड़ी होती हैं, नमाजे फजर भी उसी कमरे में अदा करती हैं। बाहर घर वाले उन्हें तलाश कर रहे थे, आखिर सुरैया कहां चली गई, लेकिन किसी को पता नहीं था। सुरैया रात के अंधेरे में कासिम जिन के कमरे में इबादत करती रही। उसके बाद चुपचाप कमरे से बाहर निकलती हैं, अपने कमरे में दाखिल हो जाती हैं। भाई नियाज खान की नजर पड़ी। भाई ने कहा, बहन कहां चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना तलाश किया। सुरैया खान कहती हैं, मैं तो घर पर ही थी, मैं कहां जाने वाली हूं। इसके बाद भाभी के साथ मिलकर किचन में जाती हैं। बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना था, लेकिन दोनों जानते थे कि घर में कोई भी चीज मौजूद नहीं है जो बच्चों को नाश्ते में दी जाए।
आटे के कनस्तर को उठाया जाता है, अंदर थोड़ा बहुत आटा लगा हुआ था। सुरैया खान ने देखा अगर पूरे डब्बे को साफ करके झाड़ा जाएगा इसमें से इतना आटा तो निकल ही आएगा जिससे 2 रोटियां बना ली जाएंगी। अब सुरैया खान डब्बे को अच्छी तरह से अंदर से साफ करती हैं और उसमें से जो भी आटा निकलता है उसको गूंदना शुरू करती हैं। भाई नियाज खान ने कहा मैं थोड़ा बाहर होकर आता हूं। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके घर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सा थाल रखा हुआ था। थाल के अंदर गरम गरम पराठे और साथ ही मलाई मौजूद थी। जब नियाज खान ने यह देखा तो देखकर हैरान रह गए। फौरन उस थाल को उठाते हैं, पलटकर घर के अंदर आते हैं, अपनी बहन बीवी और बच्चों को आवाज देकर कहते हैं ये देखो गैबी मदद आ गई। अल्लाह तबारक ताला ने हम गुनाहगारों के लिए खाने का इंतजाम कर दिया। सुरैया खान ने हैरत से पूछा कि भाई आप ये कहां से लेकर आई हैं? नियाज खान कहते हैं बहन बाहर जाने के लिए मैंने जब दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि हमारे दरवाजे के सामने ये थाल रखा हुआ था, इसमें से खुशबू आ रही थी। जब मैंने कपड़ा हटाया तो देखा कि अंदर गरम गरम पराठे और मलाई मौजूद थी। सुरैया खान ने कहा अल्लाह ने हमारी तो मदद की लेकिन गांव वालों की मदद कौन करेगा? नियाज खान ने कहा बहन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह का थाल मैंने अपने घर के दरवाजे पर रखा देखा था ऐसा ही थाल मैंने तमाम घरों के दरवाजों पर रखा हुआ देखा। सुभान अल्लाह। वो तमाम के तमाम घर वाले फौरन जो है नाश्ता करना शुरू करते हैं। उसमें इतने ज्यादा पराठे थे पेट भर खाने के बाद भी चंद पराठे और मलाई बच जाती है, उसे रख दिया जाता है। रात का वक्त होता है। रात को जब तमाम लोग अपने अपने बिस्तरों पर थे सुरैया खान भी सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें आज भी कासिम जिन का कमरा अपनी तरफ आवाज दे रहा हो, अपनी तरफ बुला रहा हो। आखिरकार सुरैया खान अपने बिस्तर से उठती हैं, वजू करती हैं। वजू करने के बाद चाबी लेकर कासिम जिन के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। कमरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल होती हैं। अंदर से कुंडी लगा लेती हैं, मुसल्ला बिछाती हैं, नवाफिल की कसरत में लग जाती हैं। वो रोती जा रही थी, अल्लाह का सजदा करती जा रही थी। कभी रुकू करती, कभी क़याम करती, कभी सजदा करती। आंखों से मुसलसल आंसू बहता चला जा रहा था। यहां तक कि रोते रोते मुसल्ले पर सुरैया की आंख लग जाती है। जैसे ही आंख का लगना था उनके ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं जिनका कद बहुत ऊंचा था। सर के दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा बड़ा बारौब था। वो ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। आने के बाद वो सुरैया को सलाम करते हैं और सलाम करके कहते हैं सुरैया मैं ही कासिम जिन हूं। मेरे बाप दादा पर दादा अल्लाह के नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों पर ईमान लाए थे। उसके बाद तुम्हारे बाप दादा पर दादा ने हमें इस घर में बसाया था। इस घर में हम जब से रह रहे हैं तब से तुम लोगों के अखलाक को हमने देखा, मामलात को देखा, खिदमात को देखा। तुमने हमें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई और हमने तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि हर वक्त तुमने हमारा ख्याल रखा है। आज तुम लोग परेशानी में हो, मुसीबत में हो, ऐसे में क्या हम तुम्हें यूं ही छोड़ सकते हैं? अल्लाह तबारक ताला ने मुझे तुम्हारी खातिर जरिया बनाया है। तुमने अपने रब की बारगाह में दुआएं की और अल्लाह तबारक ताला ने मेरी और मेरे खानदान वालों की ये ड्यूटी लगा दी है कि जब तक यहाँ के हालात पहले की तरह सही नहीं हो जाते हैं तब तक तुम सबके खाने पीने का इंतजाम हमें करना होगा। सुरैया जरा भी परेशान मत होना, मैं वादा करता हूं अगर तुम लोग इसी तरह से हमारी खिदमत करते रहे अगली 3 पुश्तों तक तुम्हारे खानदान को खाने पीने की कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो तुम्हारा घराना बांटने वालों में शुमार किया जाएगा। अलबत्ता सुरैया तुमने मुझे ख्वाब में देखा, इसके बारे में तुम किसी को कभी मत बताना। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में ये राज अपने सीने में लेकर मत जाना, बल्कि अपने घर के किसी जिम्मेदार को मेरे बारे में सब कुछ बता देना और फिर उससे भी इस बात का वादा ले लेना कि वो भी किसी को नहीं बताएगा जब तक कि उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त ना जाए।
3 पुश्तों तक तुम मेरे राज को राज रखना, इसके बाद लोगों पर यह बात जाहिर कर देना। अल्लाह अकबर। सुरैया खान ने ख्वाब ही में कासिम जिन से वादा कर लिया। इसके बाद अगली सुबह नमाज फजर के बाद जब सुरैया खान के भाई नियाज खान अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं, गांव वालों के हालात मालूम करने के लिए और खाने पीने का इंतजाम करने के लिए, तो कुछ दूर जाने के बाद उनकी नजर पड़ती है एक ऊंचे टीले के ऊपर एक शख्स खड़ा था जिसका कद तकरीबन 6.5-7 फीट का था। उसके सर के दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद थे, उसकी जुल्फें लंबी थी, उसका चेहरा बड़ा रौबदार और खूबसूरत था। नियाज खान साहब नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के करीब जाते हैं तो करीब जाकर वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। बुजुर्ग टीले के ऊपर मौजूद थे और उनके सामने नीचे डेगे चढ़ी हुई थी। बावर्ची तरह तरह के खाने तैयार कर रहे थे। जब नियाज खान साहब ने सबको गौर से देखा तो पता चला कि इनमें से कोई भी उनके अपने गांव का नहीं है, बल्कि सब बाहरी लोग हैं। नियाज खान साहब ने बुजुर्ग को सलाम करते हुए कहा कि बाबा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या आपको किसी ने हमारी मदद के लिए भेजा है? इस पर बुजुर्ग ने नियाज खान साहब से सिर्फ एक ही बात कही, बेटा जाओ जाकर गांव वालों से कह दो कि जवाल के वक्त आ जाएं, सबके खाने का इंतजाम किया जाएगा। आज हमारी तरफ से गांव वालों के लिए लंगर है। नियाज खान साहब खुशी खुशी वापस जाते हैं। गांव वालों में ऐलान कर देते हैं। अब तमाम गांव वाले जवाल के वक्त बर्तन लेकर पहुंचते हैं और सबको भरपेट खाना दिया जाता है। नियाज खान साहब खुद कहते हैं वो खाना इतना ज्यादा लजीज था कि ऐसा खाना आज से पहले हमने कभी भी नहीं खाया था। फिर अगले रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ। नई तरह की चीजें पकाकर गांव वालों में तकसीम कर दी गई। फिर तीसरे रोज भी इसी तरह से हुआ। सुरैया खान हर रात कासिम जिन के कमरे में जाती, रब का शुक्र अदा करती और अपने रब की बारगाह में दुआएं करती और साथ ही साथ कासिम जिन का भी शुक्रिया अदा करती थी। और रोजाना गांव वालों के लिए यूं ही लंगर का एहतमाम होता था। तकरीबन 10 रोज इसी तरह से गुजर गए। इसके बाद गांव वालों ने सोचा ये मदद जो हमें आ रही है, अगर ये मदद बंद हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? हमें अब अपनी खातिर कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। अब गांव वाले अपने अपने घरों में चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे थे तो घर में इतना पानी भरा था, लकड़ियां गीली हो गई थी, किसी के घर का चूल्हा जलने को तैयार नहीं था। आज रात सुरैया खान जब कासिम जिन के कमरे में गई तो जाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं, ऐ अल्लाह, अब हम चाहते हैं कि गांव वालों के घरों का चूल्हा भी जल जाए। हमारी खातिर गैब से खाने पीने के सामान के साथ साथ सूखी लकड़ियों का भी इंतजाम कर दे। सुरैया खान ने रात के अंधेरे में कासिम जिन के कमरे में जाकर अपने रब के हुजूर ये दुआएं की थी। अगली सुबह जब तमाम गांव वाले अपने अपने घरों से निकले ये देखने के लिए कि चलो देखते हैं आज हमारे लिए क्या खाना बनाया जा रहा है, तो गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। आज उनके लिए कोई खाना नहीं तैयार किया जा रहा था, बल्कि खाने पीने का सामान तो मौजूद था, साथ ही तमाम गांव वालों के लिए सूखी लकड़ियां भी वहां पर मौजूद थी। और खाना बनाने वाले लोग खाना नहीं बना रहे थे, बल्कि उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के हुक्म पर राशन और सूखी लकड़ियां उठा उठा कर गांव वालों के घरों तक पहुंचा रहे थे। यानी तमाम गांव वालों के घरों तक सूखी लकड़ियां और राशन पहुंचा दिया गया। सुरैया खान ने आज रात भी कमरे में जाकर कासिम जिन का, उनके खानदान वालों का शुक्रिया अदा किया। और इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेक जिन और उसके तमाम खानदान वालों के जरिए ये ना कि सिर्फ जिस घर में वो रहा करते थे उन वालों की, बल्कि जिस गांव में वो घर मौजूद था पूरे गांव वालों की परेशानी मुसीबत और बला के मौके पर मदद फरमाई। सुभान अल्लाह, वाकई जो जिन्नात नेक होते हैं, मोमिन होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार होते हैं, वो कभी किसी मुसलमान को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। शर्त यह है कि हम भी उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचाएं, न किसी बात से, न अपनी जात से। अल्लाह तबारक तआला हम सबको शयातीन के शर से महफूज फरमाए और नेक जिन्नात को तकलीफ पहुंचाने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जो लोग भी जिस्मानी या रूहानी अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, अल्लाह उन सबको शिफा अता करे और मेरा करीम हम सबको जिस्मानी और रूहानी अमराज से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।